have done something like this. We we talked about middleware functions, and middleware functions are the functions which are run in between of the front end and back end. And then we suddenly moved towards the types of the middleware functions. There are two types, predefined and user defined. And predefined middleware functions are also of two types, root specific and global. We will talk about them after some time. And then we talked about API. So API is kind of an interface between front end and back end. तो आपका जो भी डेटा आ रहा होगा बीच में लेयर से होते हुए, इसको हम एपीआई बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामेबल इंटरफेस, वो एंड पॉइंट जहाँ से आप डेटा को रिसीव कर रहे होगे. REST API. What is REST API? Sir, REST API is nothing but just a representational form of API. If you are writing API, then there is not a problem, but there are some recommended way. As we had in Redux toolkit that we will create reducer, slice and something like that. So यहाँ पे भी हमारे पास API को लिखने के कुछ तरीके हैं. अगर हम उनको फॉलो करते हैं, so basically REST API is a representation of API. ये कुछ शर्तें हैं जो हमें मानना पड़ेगी. पहला, आपका रूट हमेशा नाउन होना चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट मेथड, हमें इनमें से कोई एक रिक्वेस्ट मेथड यूज करना है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स. एंड देन आई हैड असाइंड यू वन लाइक वेरी माइनर सा टास्क to know about the difference between put and patch. What is the difference between put and patch? You do not know. क्यों आते हो क्लास में बैठने, किराया भाड़ा लगा के? घर पे आराम करा करो. क्या डिफरेंस है पुट एंड पैच? बताओ. If we want to change the document or resource entirely, then we use put request. And if we want to change some of the part of that resource, then we use patch. ओके, ठीक है. तो मतलब ये जो भी डेटा हमें अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र है, यूज़र की कुछ एक आध डिटेल्स सिर्फ अपडेट करानी है, पहले वाली वैसे रहने देनी है, तो हम पैच यूज़ करेंगे. पूरा डॉक्यूमेंट अगर अपडेट करवाना है तो पुट यूज़ करेंगे. कई बार इन दोनों का इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं. कई बार हम पैच यूज़ नहीं करते, पुट कर लेते हैं, पुट यूज़ नहीं करते, पैच यूज़ कर लेते हैं. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है. डिलीट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एमवीसी हमने बोला था, अभी बस याद कर लो. मॉडल व्यू कंट्रोलर, बाद में इसके बारे में बात करेंगे. सो नाउ फोर्थ टर्मिनोलॉजी ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, that controller should be named either verb or with verb. Okay, then we talked about the difference. Okay, we have not talked about it. What is the difference between API and REST API? Sir, actually REST API is subset of API only, and here we have the best practices to follow. API and REST API, there is not like too much difference, but the only difference is these conditions. REST API should be following these conditions, but normal API must not. Okay, काफ़ी थियोरेटिकल बात कर ली. एंड देन ये हमारा सर्वर वाला कोड था. कहाँ गया? अरे सर्वर वाला कोड पूरा गायब हो गया. कोई नहीं, चलो आज फिर से स्क्रैच से लिख लेते हैं. सो आज हम करने क्या वाले हैं, थंडर क्लाइंट एज वेल. सो बेसिकली अभी हम करने क्या वाले हैं, लेट्स सी. डॉट env इन्वायरमेंट वेरिएबल, हमारे पास एक पोर्ट नंबर है, दैट इज 3000. एंड व्हाट एल्स वी आर हैविंग हियर, readme file and a server js. Okay, not a problem. So within that server.js I'm going to write some code. एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रहा हूँ मैं. एंड देन एक एप्लीकेशन या सर्वर वट एवर यू वॉन्ट टू लाइक मेक, यू कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस. आपने एक्सप्रेस को कॉल किया, मेक श्योर यू कैन क्रिएट मल्टीपल सर्वर्स, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4. You can create, but for that you will be using different port number. So right now I have created one server only, and this server will be listening on port number whatever we will get from process
.env.port. But let me see if I run it console.log. Everything is good. सर वॉइस थोड़ी हो रहा था। क्या? ठीक है, अभी मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपना एंड यहाँ पर एक कमांड रन करता हूँ npm run start. So when I execute this command, everything is good to go. But is it like literally good to go? Because we have not a port number. Although we have defined one port number here, but yet we have not configured that in this file. So what will I do? I will require one package, that is .env, and then I will do the configuration of it. And because I know that I will be using .env only for a single time, so why do I need to put it some in variable like this? So I'm just calling the config function out of this library after requiring it, and now server is running on port number, whatever port number was provided here, and here we will write something like this at okay, just leave it like this at and plus process dot env dot port. Let me see, and yeah, we are getting that port number. And now what we want to do, basically what we'll be doing here, we will create routes for creating user. Imagine we are creating some kind of social media application. We will be creating one route for creating user and updating user and deleting user and creating, updating and deleting. और क्या होता है getting user, मतलब login कराना. Okay, let's see how will we do it. But sir, where the heck I have defined the front end of this application? Nowhere. So what will we do? We will be using Thunder client as a HTTP client. Yesterday we have seen it. It is very easy to use. And then we will say that at this server we are creating some of the request, some get request for home route only. Here I will write something like this: console.log sub maje main. So when I save it, and if I go to my Thunder client, and if I get a request and send the request, then what should I get in return? If I send it, then what should happen here, and what will I get here? क्या होगा? So when I will send a request from here at this route, then request will come here. We check the route, but this statement will be logged on the console. But the problem is that here we are not sending any response. Then this HTTP client will be waiting and waiting and waiting, buffering, and after some time, it will say that we couldn't get the response. कौन है ये ब्रश में? म्यूट कर लो अपने आप को. ओके, तो भैया रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं क्या हुआ. सर्वर पे आ गया सब मजे में. फंक्शन तो कॉल हुआ है, बट क्योंकि फंक्शन ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेजा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा. सी राइट नाउ, later on we will be using web sockets, but right now we are using HTTP client. So what is HTTP client? Sir, HTTP transfer protocol. This is unidirectional. What I mean by unidirectional, see what will happen whenever I send request from front end to the server, then what will happen here? Request will be sent here, and here we will handshake. Yeah, we got your thing, what you require from us, हमें route मिला. Then we will send something like this. जब यहाँ से कुछ डेटा दे रहा है, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है, बस लिसन कर रहा है क्या डेटा आ रहा है. जब ये दे रहा है तब ये लिसन कर रहा है. ये ऐसे नहीं कर सकते कि ये कभी भी दे रहा है, ये कभी भी दे रहा है. हाउ माय कम्युनिकेशन विल वर्क? Whenever I require anything from server or database, I will have to send one request asking it, क्या वो वाली दवाई आ गई जो मंगाई थी? क्या वो वाली दवाई आ गई जो मंगाई थी? क्या वो वाली दवाई आ गई? क्या क्या वो वाली दवाई आ गई? ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इसको भेजा
एंड ये मल्टीपल लोगों से कनेक्ट कर रहा है, बाद में दे रहा है. सो दैट इज वेयर WebSocket will take place. But right now we are using HTTP request only. So in that scenario, what happens? Make sure this is a middleware function that is being executed in between the front end and the back end. यहाँ पे हमें दो आर्ग्यूमेंट रखने जरूरी है, नेसेसरी है, REQ and RES. And then what will happen? From here we will send the response good to go. And when I save it and again go to my HTTP client and send request from here, good to go. We have received data in the front end application. Now there can be question, sir, yeah, we can get the data from the client, but sir, can we carry the data? Can we carry the data from client to the server? And if so, how we are going to use it? मैंने कहा बहुत सिंपल है. I will come here, I will create one post request for creating user. हमने बोला यहाँ पे user को create करवा रहे हैं. हमने बोला this is we are creating just an API, but API नहीं, REST API बनाएंगे. REST API क्या बोलती है? नाउन होना चाहिए रूट. ये रूट होता है, जो एड्रेस है इसको हम रूट बोलते हैं. तो हमने कहा नाउन होना चाहिए. सो लेट्स मेक इट नाउन. हम पहले लिखने वाले थे क्रिएट यूजर, लेकिन क्रिएट करना तो एक वर्ब हो जाएगा, एक एक्शन हो जाएगा, बस नाउन रखना है, तो हमने यूजर बोल दिया. एंड पोस्ट मेथड विल स्पेसिफाई दैट वी वांट टू क्रिएट समथिंग विद यूजर राउट. And here I will store 2 parameters within this middleware function. And let me show you. Let me log the request.body on the console. And request में send करते हैं data मिल गया. Okay. And let me go to this place. And यहाँ पे आता posting something to the Hasib. Hasib ने user पे कुछ कराएंगे. So if you want, then you can rename it. Rename it creating user. Okay, saved it. Yeah. So when I send the request, data मिल गया. But if I go to my backend terminal, what am I getting here? I should have been, yeah, I am getting undefined. The reason why am I getting undefined? What is the reason? Why am I getting undefined? Because I have not sent anything from the front end, right? I will come here. ये रहा मेरा पोस्ट मैथड. ओके, पोस्ट मैथड है. सर अगर मैं इसको गेट कर दूंगा, अब रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, कोई रूट ही नहीं मिलेगा. अरे यार, इस रूट पे कुछ भी गेट नहीं कर सकते. बट इफ यू पोस्ट देन सेंड करोगे, मिल जाएगा. क्यों मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो रिक्वेस्ट का मैथड होगा दैट शुड बी पोस्ट. यहाँ तक ठीक है आर्यन? आ रहा है? कहाँ से रिपीट करूँ? अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ना फ्रंट एंड से कुछ डेटा नहीं भेजा. यहाँ से सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करी. ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला रिक्वेस्ट की बॉडी को प्रिंट करा दो. अब बॉडी क्या है? जब हमारा डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में आता है ना, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनता है जो हमारे इसमें आ रहा है. इसी में एक बॉडी नाम का नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनता है. सो बॉडी में वो सारा डेटा होता है जो हम फ्रंट एंड से बैक एंड के लिए भेज रहे होते हैं. अभी क्योंकि हमने फ्रंट एंड से बैक एंड पे कोई डेटा नहीं भेजा, तो रिक्वेस्ट की बॉडी हमें अनडिफाइंड प्रिंट करा के दे रही है. मेक श्योर आप जो यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हो ना, पोस्ट है, गेट है, वो सेम रिक्वेस्ट के लिए आपने एपीआई यहाँ पे बनाने हैं. अदरवाइज ये लिसन नहीं कर पाएगा. अगर मैं रिक्वेस्ट का टाइप बोला पैच, सेंड किया, कुछ भी नहीं मिला, पुट किया, कुछ नहीं मिला, अरे सर मिलेगा कैसे? हमने तो पोस्ट के लिए बनाई है एपीआई, तो डेटा मिल गया. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे आप कह रहे हो मिडलवेयर फंक्शन, तो मिडलवेयर तो आपने सब बोला कि बिटवीन में होता है. यस. ये एंड में रिस्पांस पूरा भेज रहे हैं, तो सर ये फ्रंट एंड में आ गए. ना देखो, वो ही तो मैंने कल आपको क्या बोला. सी थियोरेटिकली कोई भी पूछता है बोलना ये बस. लेकिन मिडलवेयर फंक्शन है क्या? एपीआई में जो आप पास कर रहे हो, सी ये क्या है? आप इस पूरे को बोल रहे हो कि एक सर्वर है. इमेजिन इट समथिंग लाइक दिस. एचटीटीपी क्लाइंट है, यहाँ पे एक लेयर है, और यहाँ पे डेटाबेस रखा है या जो भी चीज़ है, यहाँ पे आपके बिजनेस का लॉजिक है. तो दिस लेयर इज काइंड ऑफ सर्वर, एंड ये सर्वर या लेयर छोटी छोटी एपीआई से मिलकर बनी है. एक एपीआई यहाँ पर है, एक एपीआई यहाँ पर है, एक एपीआई यहाँ पर है.
तो मेन लॉजिक जो ये आपका बिजनेस का सॉरी जो डेटा है वो रखा है यहाँ पे. सो मिडिलवेयर फंक्शन इज व्हाट? मिडिलवेयर फंक्शन इज लिसनिंग द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट एंड वैलिडेटिंग इफ द क्लाइंट इज ऑथोराइज्ड टू एक्सेस दैट डेटा और नॉट. अगर क्लाइंट एक्सेस ऑथोराइज होगा then it will go to the database and ask this data and send it back to the customer or client. This is how it is working. So front end क्योंकि database is also like part of back end ये भी. So middleware function is something like that कि जो HTTP जो data और हमारे client के बीच में actually work कर रहा होगा. यहाँ पे post get एंड ये जो हमने बनाया ये सारे एक मिडलवेयर फंक्शन है. API इज मेड अप ऑफ मिडलवेयर फंक्शंस. नॉर्मली फंक्शंस होते हैं, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं होती. बाद में देखेंगे दो और पैरामीटर भी हो सकते हैं इसके अंदर. वी विल हैव अ लुक ऑन इट. यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तुम्हें कोई दिक्कत है शुभम? गौरव, गौरव नाम है ना? गौरव आ रहा है? ठीक है. ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए देखते हैं जी फ्रंट एंड से डेटा कैसे लेके जाएंगे बैक एंड पे. हमने बोला जो रिक्वेस्ट है ना इसकी बॉडी में हमें कुछ भेजना है एंड डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड के बीच में जब भी डेटा ट्रांसफर होता है, ट्रैवल होता है, कम्युनिकेशन होता है इन फॉर्म ऑफ जेसन. तो हमने बोला बॉडी में अभी क्योंकि हमारे पास इनपुट वगैरह है नहीं तो हम इसको यूज़ करते हैं बॉडी में. बाइनरी ये क्या कर दिया बाइनरी फॉर्मेट में डेटा लेके जाना है. जेसन है क्या? काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बस हमारे जो ऑब्जेक्ट के की का नाम होता था वो हमें डबल कोट्स में नहीं रखना होता था. यहाँ पे हम रखेंगे. मैंने बोला नेम है, नेम बोल दो या इसको यूज़र नेम बोल दो कि दिस इज आवर यूज़र नेम. मैंने बोला MOHDHSIB2001 अरे सर ये तो ईमेल लिख दिया आपने. कोई नहीं, इसको हम यूज़र नेम यही है और यही हमारा ईमेल भी हो जाएगा. ईमेल एंड लास्ट में एक पासवर्ड रख देते हैं. सो द पासवर्ड टू लॉग इन इज 1 2 3 4 5. ओके, लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट. लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग. सर स्टिल इट इज शोइंग मी अनडिफाइंड. व्हाई सर? मेक श्योर how many supportable data types are there in JavaScript? There is number or array, object. There are like many data types available supportable in JavaScript, but there is nothing such as JSON. So we cannot see JSON is what? JavaScript object notation. So something which will be looking like JavaScript object, but JavaScript engine does not support it, does not understand it, that what the heck it is. So what we do, we use something like parser, or you can call it like translator. तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन है, सी जब हम डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजना चाहते हैं या बैक एंड से फ्रंट एंड पे, नो डाउट हम डेटा भेजेंगे इन फॉर्म ऑफ जेसन इन फॉर्म ऑफ जेसन. बट व्हाट आई वांट, जब डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड पे आ चुका है ना, जेसन डेटा को पास करा के कन्वर्ट करा के हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे. सो हियर वी विल यूज समथिंग विच इज नोन एज, यहाँ पे हम बोलेंगे एक काम करो एक्सप्रेस जेसन में पार्स कर दो. किसको पार्स करना है? रिक्वेस्ट की बॉडी को. जो भी डेटा आ रहा है कॉन्स्ट डेटा, इसको ज़रा दिखाओ ये क्या है. सो व्हेन आई कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर, sorry not request dot data, only the data. So when I save it, send again one request, then what is happening, everything is good to go. But post method है, user है, connection was refused by the server. तो ठीक है. तो फंक्शन आ रहा है जेसन पार्सर. वेट, ओके एक्चुअली बॉडी पार्सर हम ऐसे यूज़ करते हैं. तो कहाँ गया? हम एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं कि यार एक्सप्रेस डॉट जेसन लाइक दिस ओनली. और फिर हम बोलेंगे यहाँ पे कि यार रिक्वेस्ट की बॉडी को सेव करा दो.
डेटा मिल गया, इट इज अनडिफाइंड, स्टिल अनडिफाइंड. सी ओके, देयर इज वन मोर मिडलवेयर फंक्शन दैट इज नोन एज. कल हमने बात करी थी कि मिडलवेयर फंक्शन ना दो प्रकार के होते हैं, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड. यूजर डिफाइंड एक आध अभी हमने देखा, इसको देखेंगे. प्री डिफाइंड कुछ मिडलवेयर फंक्शन से लाइक ये वाला एक पोस्ट गेट, ये सारे ना रूट स्पेसिफिक है. अगर ये वाला रूट मिलेगा तो चलेंगे, ये वाला रूट मिलेगा तो चलेंगे. और एक सर्वर, एक चीज़ ध्यान रखना, एक सर्वर ना एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे सकता. अगर आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स यहाँ से देने की कोशिश करोगे, यू विल श्योरली गेट सम एरर. लेट मी शो यू. अगर मैं अपने थंडर क्लाइंट में जाऊँ और गेट वाली रिक्वेस्ट को दोबारा भेजूँ, सेंड करूँ यहाँ से, सो यू विल गेट सम एरर कि क्या कर रहे हो, कैन नॉट सेंड हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट. एक बार आपने रिस्पॉन्स में कुछ भेज दिया, देन यू कैन नॉट सेंड इट अगेन, क्योंकि दिस इज माई HTTP कम्युनिकेशन. कुछ मांगेंगे, यहाँ से भेज देगा. अब जब एक बार आपने भेज दिया है, ये व्यक्ति अब मांग ही नहीं रहा, तो किसको भेज रहे हो, यू कैन नॉट सेंड इट समथिंग आफ्टर वंस यू सेंड. अब हम यहाँ पे करते हैं एक काम, गेट देखा, पोस्ट देखा, ये सारे रूट स्पेसिफिक थे, बट देर इज वन मोर मिडलवेयर फंक्शन दैट इज ऐप डॉट यूज. तो मैं ये बोलूँगा, सॉरी अभी हमारे पास ऐप तो कुछ नहीं है, व्हाट वी हैव सर्वर. तो हम बोलेंगे ये जो सर्वर है ना, ये यूज़ कर रहा है इस फंक्शन को, इसका नाम है एक्सप्रेस. के पास एक फंक्शन होता है दैट इज जेसन. सो व्हेन वी इन्वोक दिस फंक्शन, बेसिकली ये करेगा क्या, लेट मी रिमूव इट फ्रॉम हियर. या फिर इससे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन रखता हूँ. पहले ऐप डॉट यूज को समझते हैं, बट बेसिकली इज डन बाय इट. कंसोल पे लॉग कराते हैं, सब ठीक है. अब ये बताओ मुझे, अगर मैं अपना थंडर क्लाइंट खोलूँ और कहाँ गया रे, ये रहा, गेट रिक्वेस्ट करूँ, तो क्या आएगा जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, यहाँ से क्या होगा. मैं अपना सर्वर का कोड आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे कुछ ही API लिखी, ये गेट वाली API है स्लैश, ये है, बस मैंने एक लाइन ऐड करी है. सर्वर यूज़ कर रहा है इस एक फंक्शन को जो कंसोल पे लॉग करा देगा, सब ठीक है. और हम यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स में मिलेगा, कंसोल मिलेगा और रिस्पॉन्स हो जाएगा, वो भी जो यूज में है वो भी कंसोल मिलेगा. ठीक है. तो जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना, सी व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आया सब ठीक है. सब ठीक है क्यों आया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सर्वर डॉट यूज इज अ मिडलवेयर फंक्शन, एंड हाउ डज इट वर्क. सर आप ना सर आप ना इसके अंदर जो भी रखोगे, ये सारे फंक्शन तो ऐसे पहले रूट मैच कराएंगे. अच्छा ये वाला रूट है, ये वाला रूट है. यूज मेथड कैसे वर्क कर रहा है, किसी भी रूट पे रिक्वेस्ट जा रही है, सबसे पहले आप मेरे पास आओगे, सबसे पहले यू विल कम टू मी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू कम टू मी. देन आपने बोला कंसोल डॉट लॉग, सब ठीक है, ये प्रिंट करा दे. यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स में भेजा नहीं, यहाँ से आपने कुछ रिस्पॉन्स में भेजा नहीं, एंड यहाँ से आपने रिस्पॉन्स में नहीं भेजा, और ना ही आपने ये बोला कि यहाँ से अगले वाले फंक्शन में जाना है. तो इसने क्या किया, सब ठीक है यहाँ से प्रिंट करा दिया, और रिस्पॉन्स में हमें कुछ मिला ही नहीं. चेक कर रहा है. सो व्हाट विल वी डू, वी कैन ऑल्सो सेंड रिस्पॉन्स फ्रॉम हेयर. हम यहाँ पे बोलेंगे रिस्पॉन्स सेंड कर दो कि यूज़ वाला रिस्पॉन्स, यूज़ वाले फंक्शन का रिस्पॉन्स. इफ आई सेव इट एंड अगेन सेंड अ न्यू HTTP रिक्वेस्ट, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, अब क्या होगा अगर मैं एक और नई रिक्वेस्ट भेजूंगा तो. रिस्पॉन्स का नहीं आएगा सर आपकी हाँ क्यों राउट से शेयर आता हूँ ना, ऐसा नहीं है. अब की बार मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, सी व्हाट विल हैपन, आई विल गेट सम कंपाइल्ड एरर. लेट मी टेल यू द रीजन ऑफ द एरर. Am I getting it here? Yeah. See, RES is not defined, reference error. What is RES in this scope? Yeah, we know that RES is something, but in this scope, here in this scope, what is RES? Okay, so I will have to pass two things in this middleware function, RES and REQ. Make sure जो पहले वाले प्लेस पे होता है कुछ भी नाम हो सकता है, इसमें रिक्वेस्ट से रिलेटेड चीज़ आएंगी, यहाँ पे रिस्पॉन्स से रिलेटेड चीज़ आएंगी. रिस्पॉन्स में मैंने सेंड करवा दिया, एंड अगर अब मैं सेव करूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सेंड किया,
सी सेंड कर रहे हैं यूज वाला रिस्पॉन्स, सेंड कर रहे हैं यूज वाला रिस्पॉन्स, सेंड कर रहे हैं यूज वाला रिस्पॉन्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ये तो इस वाले फंक्शन में ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अब मिडिल वेयर फंक्शन को समझना। मिडिल वेयर फंक्शन सर प्रीडिफाइंड है, रूट स्पेसिफिक है, ग्लोबल है, हमने ग्लोबल को यूज किया। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, जैसे इस मिडिल वेयर फंक्शन में ना हम एक तीसरा आर्ग्यूमेंट भी रख सकते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग fn, इसका नाम आप fn रख दो। बेसिकली इस तीसरे आर्ग्यूमेंट में होता क्या है, देयर इज अ लॉट टू रिमेंबर, रट्टाफिकेट, ये चीजें समझने वाली है मिडिल वेयर फंक्शन में। अगर मिडिल वेयर फंक्शन में आपने दो आर्ग्यूमेंट रखे हैं आर ई क्यू एंड आर ई एस, तो क्या होगा? अच्छा, इनका नाम कुछ भी हो सकता है। पहले वाले ऑब्जेक्ट, पहले वाले पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा रिक्वेस्ट से रिलेटेड, दूसरे वाले पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा रिस्पॉन्स से रिलेटेड। अगर आपने इसमें तीसरा पैरामीटर भी रख दिया ना, तीसरा पैरामीटर रख दिया, देन व्हाट विल हैपन? अगर आप इसको यहाँ से हटा दो एंड यू कॉल दिस fn फंक्शन, देन व्हाट विल हैपन? लेट मी शो यू। अगर आप fn फंक्शन कॉल कर दोगे, देन व्हाट विल हैपन? सो व्हेन यू विल सेंड वन रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर to this place, then good to go. And what is happening? Let me check. Okay, so पहली बात, आपने यहाँ पे दो रिस्पॉन्स भेजे हैं, इसको हटा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दोबारा मैं एक नई ब्रांड न्यू रिक्वेस्ट भेजना हूँ यहाँ से, तो सब ठीक है और रिस्पॉन्स में आ गया गुड टू गो। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब मिडिल वेयर फंक्शन चलता है ना, क्या होता है, आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजी, सबसे पहले ये वाला फंक्शन, ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा एंड ये फंक्शन कंसोल पे लॉक करा देगा, सब ठीक है। फिर ये fn फंक्शन क्या कर रहा है? बेसिकली मिडिल वेयर फंक्शन की लिस्ट में मेरे बाद जो फंक्शन है उसको रन करा दो। तो पहले इस रूट में ये वाला फंक्शन चला था, fn का मतलब होता है नेक्स्ट वाले फंक्शन को कॉल करा दो, मतलब इसके बाद इस वाले फंक्शन में कॉल करा दो। एंड जनरली नेमिंग, देयर इज अ नेमिंग कन्वेंशन, बिकॉज हमें पता है ये fn क्या कर रहा है, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कराएगा। नेक्स्ट एक कॉल बैक फंक्शन है जिसको हम कॉल करा के नेक्स्ट फंक्शन में पहुंच सकते हैं। सो हम जनरली क्या करते हैं कि भैया इसको नेक्स्ट नाम रख दें। अच्छा, इसको ना हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। अभी तक हमने गेट पे सिर्फ एक फंक्शन रखा, बट वी कैन प्लेस मल्टीपल फंक्शंस हियर। जैसे मैं इसको यहाँ से कट कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। मैंने कहा एक फंक्शन बनाओ, पोस्ट द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रीटिंग, ठीक है। मैंने बोला यार जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी ना, तो हमारे पास कंसोल पे आना चाहिए रिक्वेस्ट आई है, एंड आई विल हैव टू प्लेस वन इक्वल सिंबल हियर, ठीक है। ओके, जूम आउट भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पोस्ट को भूल जाते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि हमारा मेन फोकस इस एरिया में रहे। एक सर्वर बनाया एक्सप्रेस का, ग्रीटिंग फंक्शन बनाया, सर्वर डॉट गेट। अब मैंने बोला इस प्लेस पे रिक्वेस्ट भेजो, क्या आएगा रिस्पॉन्स में? गुड टू गो आएगा, है ना, फ्रॉम दिस फंक्शन। हमने इस प्लेस पे रिक्वेस्ट भेजी, वाला फंक्शन ट्रिगर हुआ, रिस्पॉन्स में भेज दिया गुड टू गो। अब अगर सर ग्रीटिंग फंक्शन तो कॉल ही नहीं हुआ, इसको कैसे कॉल कराऊंगा? मैं इसको कॉपी करूंगा, सॉरी ग्रीटिंग फंक्शन को कॉपी किया एंड मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा काइंड ऑफ चेनिंग। सो दिस इज हाउ मिडिलवेयर फंक्शंस वर्क। सी इस प्लेस पे रिक्वेस्ट आई, पहले ये वाले फंक्शन में जाएंगे, देन इसके बाद ये वाले फंक्शन में जाएंगे। अगर एक और फंक्शन होता है यहाँ पे, तो उसके बाद उस फंक्शन में जाते हैं, एक और होता उसमें जाते हैं, लास्ट वाले फंक्शन पे जाके रुक जाएगा। सो व्हेन यू सेव इट एंड अगेन सेंड अ रिक्वेस्ट, देन व्हाट विल हैपन? कंसोल में मिलेगा रिक्वेस्ट आई है, बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन आउटपुट। लेट मी टेल यू द रीजन व्हाई द हेक वी आर नॉट गेटिंग आउटपुट। सी इस रूट पे गए, इस फंक्शन के अंदर तो आ गए ग्रीटिंग वाले में, बट ग्रीटिंग वाले फंक्शन में हमने नेक्स्ट फंक्शन को इसको इन्वोक नहीं किया कि आप अगले वाले फंक्शन में चले जाओ। सो हियर आई विल राइट REQRES and NEXT एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा NEXT। या फिर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता डायरेक्ट कि NEXT फंक्शन को कॉल करना है? सो या इफ आई गो एंड सेंड वन मोर HTTP रिक्वेस्ट, देन व्हाट विल हैपन? We will get one error, and what error that will be? Sir, next is not a function. क्यों नहीं है? Because middleware function इस तरीके से बनाए गए हैं, पहला जो भी पैरामीटर होगा इसमें रिक्वेस्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट आएगा, एंड रिक्वेस्ट इज एन ऑब्जेक्ट बट नॉट अ फंक्शन, एंड आपने इसको फंक्शन की तरह कॉल कराया। सो आई नो दैट पहले वाले पैरामीटर में रिक्वेस्ट आएगा, दूसरे में रिस्पॉन्स, एंड तीसरे में एक्चुअली वो फंक्शन आएगा जिससे हम अगले फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। सो व्हेन आई विल सेव इट एंड सेंड वन मोर न्यू HTTP रिक्वेस्ट, एंड व्हाट इज हैपनिंग? गुड टू गो। एंड हमें कंसोल पे ये भी देखने को मिल रहा है रिक्वेस्ट आई है अगेन। अरे भाई ऊपर क्यों जा रहा है ये? ठीक
अगेन एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट आई है। अच्छा एक चीज़ हो, अगर मैं एक और रूट बना दूँ यहाँ पे, इसी को कॉपी करके एक और रूट बना दूँ एंड इस रूट का नाम लिख दूँ अनदर, मैंने यहाँ से ग्रीटिंग को हटा दूँ। अच्छा ये बताओ, अभी रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ये आएगा रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि हमने स्लैश रूट पे भेजी है और वहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन रखा था। फिर यहाँ पे मैं अगर अनदर लिख दूँ और अब रिक्वेस्ट भेजूंगा तो क्या वो आएगा, रिक्वेस्ट आई है नहीं है, रिस्पॉन्स तो आ रहा है बट रिक्वेस्ट आई है नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अनदर वाले रूट पे हमने ग्रीटिंग को बीच में रखा ही नहीं है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे 10 रूट होते तो 10 में जाके थोड़ी ना ग्रीटिंग लिखेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इस वाले फंक्शन को, दैट इज ग्लोबल मिडलवेयर, कि हमारा जो सर्वर है पूरा सर्वर इस फंक्शन को यूज कर रहा है, दैट इज ग्रीटिंग। सो यू जस्ट डू इट लाइक दिस हियर एंड इफ यू रिमूव इट फ्रॉम हियर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप किसी भी रूट पे जाओ, रिक्वेस्ट भेजो, व्हाट इज हैपनिंग, वी आर नॉट गेटिंग एन एरर, वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स। अनदर पे भी रिक्वेस्ट आई आ रहा है, नॉर्मल रूट पे भी रिक्वेस्ट आई है आ रहा है, अनदर पे भी रिक्वेस्ट आई है आ रहा है, हर रूट का भी आ रहा है, हर रूट पे अनदर आई है। यहाँ पे लिखूंगा हासिफ, देन व्हाट विल हैपन, अगर मैं यहाँ पे हासिफ लिखूंगा देन व्हाट विल हैपन सी, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट आई है। इसका इलाज कैसे निकाल सकते हैं आप सोचना, एरर तो आ रहा है कि एरर दे नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट आई है। सो फिक्स इट, हाउ कैन वी फिक्स इट? एनीवेज बाय द वे app.use में ना मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे पास जो डेटा आ रहा होगा फ्रंट एंड से जेसन फॉर्मेट में, एक्सप्रेस जो ये वाला मॉड्यूल है, हाँ इसके पास ना एक मेथड होता है, एक्सप्रेस के पास एक मेथड होता है दैट इज जेसन। सो ये जेसन बेसिकली क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न कराएगा अपने पास से, एंड जो फंक्शन ये रिटर्न करवा रहा है ना उस फंक्शन को कॉल करवाएगा ये server.use, और ये फंक्शन क्या करेगा, जितना भी डेटा हमारे पास फ्रंट एंड से बैक एंड में आ रहा है उसको पार्स करवा देगा। इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट। एंड अभी मैं दोबारा एक यूजर रूट बना देता हूँ, पोस्ट करा रहा हूँ यूजर रूट पे कुछ, आई सेव इट एंड अब मैंने बोला कंसोल पे लॉक करा देना, रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या आ रहा है कंसोल पे लॉक करा दो। सो व्हेन आई सेव डेटा एंड वेंट टू माय थंडर क्लाइंट एंड अब की बार रिक्वेस्ट भेजी मैंने पोस्ट रूट के लिए ये यूज़र क्रिएट करना है मुझे। सो व्हेन आई सेंड द रिक्वेस्ट यू विल फाइंड आउट दैट वी आर गेटिंग द डेटा, email ID, username and password. Here we have problem. Suppose we want to save it somewhere, but right now we do not have database. So what can we do? We can create one global array here. So I will create one global array here. Let's make it let users is equal to null array. And मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, जैसे हम किसी यूजर को पुश करा रहे हैं, so हम यहाँ नया यूज़र लाइक रजिस्टर करा रहे हैं, हम बोल देंगे यूजर्स नाम का जो एरे इसमें पुश कर दो रिक्वेस्ट की बॉडी को। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि भैया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ओके एंड देन जो एक तो गेट ग्लोबल रूट है, एक और बना दूंगा गेट यूज़र। सो बेसिकली गेट यूज़र क्या करेगा, ये हमारे पूरे के पूरे रिस्पॉन्स में भेज देगा, पूरे के पूरे यूजर्स की लिस्ट भेज देगा, ये बोलेगा रिस्पॉन्स में भेज दो यूजर्स को। सो व्हेन आई सेव इट एंड गो टू माय पोस्ट यूजर राउट, कौन सा है ये पोस्ट वाला, ये रहा, ठीक है। हासिफ क्रिएट कर दिया, एक और हासिफ 5-6 हासिफ क्रिएट कर दिया। अब मैं गेट में करने जा रहा हूँ यूजर को। सो यू विल फाइंड आउट दैट व्हाट वी आर गेटिंग इन रिस्पॉन्स, 1 Hasif, 2 Hasif, so we are getting 5 copies of Hasif. See, first problem that we are facing here is that if anybody has access to the database, then he can watch the password of the Hasif. That is really very insecure thing. तो अब हम इसको क्या अल्टरनेट निकालें, यहाँ तक समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखना। आ रहा है ठीक है, नहीं भी आ रहा तो भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको ना, यार इस डेटा को हमें हैश कराना है। हम बेसिकली करते क्या, हैशिंग इज व्हाट, जो भी डेटा आता है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं ये, थ्योरेटिकली देखना, 4-5 बार प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं आएगा, नोट्स बनाओ,
आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम जो पासवर्ड यहाँ से भेज रहे हैं ना, बेसिकली हम क्या करेंगे हम अपने सर्वर पे मतलब मिडलवेयर फंक्शन में बोलेंगे पासवर्ड को ना हैशिंग करा दो। हैशिंग मतलब इसको ना लाइक जैसे जैसे 1 की जगह 105 रख देना, 2 की जगह 205 रख देना, ऐसे करके कुछ हैश करके जो रियल उससे ना कुछ अजीब सा रो डेटा बना के उसको हम डेटाबेस में सेव कराएंगे। अब क्या होगा, यूजर के पास अगर वो वाला पासवर्ड लग भी गया, जब वो ये डालेगा ना ये चेक करेगा कि ये वाला पासवर्ड है, इसको मिलेगा है ही नहीं ये वाला पासवर्ड। क्यों? क्योंकि जब ये इसके पास पासवर्ड आएगा ना, ये क्या करेगा, जो हैश हुआ हुआ पासवर्ड है उसको दोबारा हैश से नॉर्मल पासवर्ड में कंपेयर करेगा। एंड जब कंपेयर करेगा, यहाँ पे तो हमने हैश पासवर्ड भेजा है इसलिए लॉग इन नहीं हो पाएगा। सो व्हाट विल बी डू, वी विल यूज वन मॉड्यूल। या तो हम अपना खुद का लॉजिक लिख सकते हैं, बट लिख ही लिया तो हमने लॉजिक छोड़ो। हम क्या करेंगे, वन मोर मॉड्यूल, एक और मॉड्यूल, एक और पैकेज, एक और डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। सो क्लियर स्क्रीन, let me open my package.json for you. How many dependencies do we have in this current project? कितनी dependencies है जी? 1.env. Wait, .env यहाँ पर है, एक्सप्रेस नहीं है तो एक्सप्रेस फिर यूज कैसे कर पा रहे हैं हम? देखना पड़ेगा क्या, दो package.json बन गई क्या? Node it should have been here. I do not know why. Isn't it being shown here? Node main index server. So कोई नहीं किया तो पता नहीं क्या हो गया है। सो npm express को फिर से इंस्टॉल कर ले रहे हैं express, और अब हमें चाहिए bcrypt, bcrypt js, मेक श्योर bcrypt नहीं bcrypt js। bcrypt क्या करेगा, हैश बना देगा, मतलब इनक्रिप्ट कर देगा, एंड खासकर इसको वैलिडेट करने के लिए हमें डिक्रिप्ट करके देगा। हाँ बोलो, हाँ कृतिका बोलो क्या? आज क्लास ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट की चल रही है ना 2:30 बजे। नहीं नहीं आज नहीं है वो क्लास, वो बाद में कर लेना, ठीक है। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, समझ वैसे भी तुम्हें कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। चलो, तो एक bcrypt js नाम का एक मॉड्यूल है, ये क्या करेगा, लेट्स सी। डिपेंडेंसीज एक लाइब्रेरी है, सो लेट मी हिट एंटर बटन, दे विल बी डाउनलोडिंग हियर। तो एक्सप्रेस और .env वी हैव रिसीव्ड, एंड यहाँ पर आके मैं बोलूँगा कि कॉन्स्ट bcrypt यूज़ करूँगा मैं, कहाँ से रिक्वायर करूँ one library that is sorry bcrypt js, and when I saved it, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले आपको यूज़ करके दिखा दूँ। कंसोल पे लॉग करा, मैंने बोला bcrypt के पास ना एक मॉड्यूल होता है, एक मैसेज होता है, वो होता है कि क्या क्या कहते हैं इसको, हैश सिंक करके। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ना, फॉर एग्जांपल हासिफ लिख रहे हो, देखना ये क्या करेगा हासिफ का। सॉरी, सेव किया, and where is my terminal? Let me start server once again. देखो इसने हासिफ का क्या बना दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग हैशिंग करता है, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो बेसिकली व्हाट विल वी डू, वी विल कम हियर, वी विल से दैट जब यूज़र आ रहा है ना, यूज़र कुछ भेज रहा है हमारे पास, तो यूज़र को डायरेक्ट ऐसे पुश मत कराओ डेटाबेस में, बट इंस्टेड ऑफ व्हाट यू शुड डू, हम यहाँ पे बोलेंगे कि रिक्वेस्ट, सॉरी एक सेकेंड, रिक्वेस्ट की, अरे यार रिक्वेस्ट की बॉडी से जो पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, मैं बोलूँगा bcrypt से हैश करा दो सिंक। सिंक मतलब सिंक्रोनस, मतलब जब तक पासवर्ड हैश नहीं हो जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वेस्ट की बॉडी में जो पहले पासवर्ड था उसी को हैश करा के इसमें अपडेट करा दो, एंड देन उसके बाद इसको पुश कराना है। सो लेट्स सी कि पासवर्ड अपडेट होके लाइक हैश वाला पासवर्ड जा रहा है या नहीं। लेट मी गो टू दिस क्रिएटिंग यूजर सेंड रिक्वेस्ट। यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई है, लेट मी चेक, इलीगल आर्ग्यूमेंट, ओके सी नंबर को ये सपोर्ट नहीं करता। सो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कुछ अजीब सा @ ये पर
ठीक है हसीब व्हाट हैपन I will go here, let me save it, refresh it and let me ओके सो ये तो पोस्टमैन का एरर है सेंड किया या यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली यूजर रजिस्टर्ड यूजर रजिस्टर्ड यूजर रजिस्टर्ड यूजर रजिस्टर्ड सो नाउ if you go to the get user and send the request you will find out that password has been hashed. You notice one thing, although the password for all users are same but still hashed password is not the same. Hashed password is not the same because जो Bcrypt है एक हैशिंग एल्गोरिदम यूज करता है जिससे ये लाइक हर बार पासवर्ड जनरेट कर रहा है एक यूनिक स्ट्रिंग बना के देता है आपको. अब आप बोलोगे यार इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे कि ये यूजर सच में यही था या नहीं था. तो मैंने कहा अब लॉगिन के लिए एक राउट बनाते हैं. इधर आते हैं एक लॉगिन के लिए रूट बनाते हैं. मैंने कहा सर्वर डॉट गेट करेगा लॉगिन में तो गेट करेगा नहीं सर पोस्ट करेगा क्योंकि डेटा तो भेजेगा ही लॉगिन करने के लिए. ओके अब हम बोलेंगे ऑथ लॉगिन नाम दे देते हैं इसका. ठीक है अब एक मिडलवेयर फंक्शन रखा REQRES यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे मैंने बोला एक काम करो सबसे पहले तो जो ये यूज़र्स हैं इसमें हम इस यूज़र को ढूंढ के लाएंगे. ढूंढेंगे कैसे, हम बोलेंगे यूज़र्स डॉट फाइंड क्या करेगा मुझे आइटम देगा और उसका इंडेक्स की अभी तो ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पे बोलूँगा या फिर एक यूज़र दे देगा. ठीक है फिर मैं बोलूँगा अगर यूज़र की ईमेल आईडीज़ ट्रिपल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल आईडी. रिक्वेस्ट बॉडी में जो ईमेल आईडी है अगर वो यूज़र की ईमेल आईडी के सेम होता है तो इसको हम रिटर्न करवा देंगे यार. एंड इसको हम रखें कॉन्स्ट की यही हमारा यूज़र है. लेट मी शो यू कि हमें यूज़र मिल रहा है या नहीं मिल रहा. तो हम रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे यूज़र को. अब एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि सारे यूज़र का सेम नाम था तो अब हम अलग अलग नेम रख लेते हैं यूज़र नेम या ईमेल आईडी. मैंने कहा 2001 है पहले सेंड करते हैं रिक्वेस्ट. फिर मैंने कहा 2003 तीन यूज़र है एंड इस पूरी को कॉपी करते हैं. एक नई रिक्वेस्ट लेते हैं यहाँ पे कॉपी नई रिक्वेस्ट. अब हमने बोला लोकल पोर्ट नंबर है 3000 एंड यहाँ पे हमने लिखा यूज़र को मांग रहे बॉडी जेसन ही है फॉर्मेट. यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे कि ईमेल आईडी ये है पासवर्ड ये यूज़र नेम भेजने की ज़रूरत नहीं लॉगिन करा रहे हैं. एंड अच्छा यहाँ पे था ऑथ /login और रिक्वेस्ट भेजने हमें पोस्ट टाइप की. सेंड करके देखते हैं सी व्हाट इज़ हैपनिंग. सो या वी आर गेटिंग दैट यूज़र जो यूज़र हमारे पास था. बट अब हमें कंपेयर करना है कि जो ये वाला यूज़र है इसका जो पासवर्ड है और अभी हमने जो ये पासवर्ड भेजा है आर दे बोथ सेम और नो एंड हाउ वी आर गोइंग टू ऑथेंटिकेट इट. सो फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ इट we will come here in this rule and we will say that if request dot body में जो पासवर्ड आया है that is triple equal no you cannot do it. हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे const match it कि पासवर्ड मैच हुआ या नहीं. सो Bcrypt ना मुझे एक करने का एक फंक्शन देता है. इस कंपेयर फंक्शन में ना मुझे दो चीज़ रखनी होती है. पहली जो मेरे पास अभी मैंने पासवर्ड भेजा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो पासवर्ड आ रहा है जो यूज़र ने अभी पासवर्ड भेजा है. दूसरा यूज़र के पास से जो पासवर्ड आ रहा होगा. अब अगर दोनों पासवर्ड सेम होंगे तो ये मैचेड नाम के वेरिएबल के अंदर ट्रू रख देगा. लेट मी शो यू. और मैं बोलूँगा इफ़ मैचेड ट्रू है मतलब यूज़र ने पासवर्ड सही डाला है तो हम यहाँ से रिस्पॉन्स में भेज देंगे रिटर्न करवा देंगे और रिस्पॉन्स में भेज देंगे कि यार जो ये यूज़र है इसको रिस्पॉन्स में भेज दो. मैं फिर से कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट नहीं आती नोड.जेएस बिल्कुल नहीं आएगी. एल्स यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा रिस्पॉन्स में बोल दूंगा मैं सेंड करवा दूंगा अनऑथोराइज्ड ऐसे करके कुछ
यहाँ पे लिख दूंगा. सो व्हेन आई सेव इट एंड अगेन, अब क्या होगा, मैं गेट करता हूँ, पहले तो यूजर को गेट करता हूँ क्या आ रहा है. सर नल एरर आएगा, क्यों? जैसे हम रीस्टार्ट करते हैं फाइल को, सारे के सारे यूजर्स गए, तभी तो हम डेटाबेस रखते हैं ताकि उन यूजर्स को सेव कर रखें फिजिकल फॉर्म में. अब यूजर क्रिएट करना पड़ेंगे. सो आई एम क्रिएटिंग 2003 and 2002 and 2001. So I have created 3 users. अरे यार क्या हो रहा है ये यूजर क्यों, अरे यार गेट वाले रूट पे हूँ मैं अभी, क्रिएटिंग रूट के लिए पोस्ट पे जाना पड़ेगा. सो 2001 and 2002 and 2003. and एक बार सबको गेट करके देखता हूँ कि सारे यूजर्स आ रहे हैं. हाँ, तीनों आ रहे हैं. मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जो यूज़र सिर्फ लॉगिन करेगा सिर्फ वही देख सकता है अपने डेटा को. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बोलूँगा ये रहा, चलो लॉगिन करने चलो इस रूट पे. पासवर्ड पहले मैं गलत भेज के देखता हूँ कि क्या बोल रहा है, गलत भेजा है जान के. तो इसने क्या बोला, अनऑथोराइज. वाह यार सही है, लेकिन अब पासवर्ड अगर मैं सही कर दूँ तो, सेंड करूँ तो आ गया डेटा. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ Bcrypt. Although we have not used it efficiently, there is something which is known as salt. काफ़ी सारी चीज़ें हैं, we will have a look on it. बट अभी मैं जितना करा रहा हूँ ना, do not try to understand it, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. नेटवर्किंग से रिलेटेड है पूरा, TCP IP HTTP. जो मैं कर रहा हूँ उसको कोड करो, कोई ज़्यादा कोड लिखा ही नहीं है. अभी तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा, कितना 40 लाइन का कोड है. इसको समझो आराम से, रिकॉर्डिंग देखो. Bcrypt बहुत बढ़िया, बहुत काम की चीज़ है सर. अभी तो कल और देखेंगे इसके बारे में. एंड टुमारो वी विल बी ट्राइंग टू इंटरैक्ट विद डेटाबेस. बट उससे पहले कल हम कर लेते हैं MVC पे चर्चा कि आखिर ये MVC क्या है. सो व्हाट इज MVC, वी विल टॉक अबाउट इट, मॉडल व्यू कंट्रोलर. अभी एक काम करते हैं, घर जाने की प्लानिंग तो हो चुकी है, बट थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं. जैसे MVC को आज ही समझ लेते हैं, टाइम अपने पास थोड़ा सा कम है. सो MVC क्या बोलता है, ये रहा मॉडल व्यू कंट्रोलर. तो ये हमसे बोलता है MVC इज आर्किटेक्चर ऑफ क्रिएशन ऑफ वेब पेज. MVC हमसे बोलता है आप अपने रूट डायरेक्टरी में ना 3 फोल्डर बना लो. पहले का नाम रखो मॉडल, दूसरे का रूट लेवल पे, दूसरे का नाम रखो कंट्रोलर, और तीसरे का नाम रखो व्यू. सो जो भी आपकी HTML वाली फाइल होगी ना, वो आप व्यू के अंदर रखना. एंड जो आपके कंट्रोलर मतलब जो ये मिडलवेयर फंक्शन है ना, मिडलवेयर फंक्शन जो कैट के अंदर रख रहे हैं, पोस्ट के अंदर रख रहे हैं, इन सबको हम कंट्रोलर बोलते हैं. सो व्हाट कैन वी डू, मुझे पता है सारे के सारे कंट्रोलर ना यूज़र के लिए हैं. तो मैं कंट्रोलर नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लूँगा, यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस. मेक श्योर लास्ट में डॉट के बाद जेएस ज़रूर होना चाहिए. एंड यहाँ पे आके मैं इन चारों फंक्शन को ले आऊँगा. सो जो पहला इनको कट कर रहा हूँ, इनको कट कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ. जो सर्वर है पहला ये वाला जो फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, लॉगिन के लिए काम कर रहा है. सो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा एंड इस वाली फाइल में आके बोलूँगा ये जो फंक्शन है, सो द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट हैपन. हेलो, गुड मॉर्निंग जी, बताइए. आज 2:30 बजे क्लास है जी. फिर शायद मैंने इस वाले ब्रैकेट को कॉपी नहीं किया था. नो, कर्ली ब्रैकेट्स है, दिक्कत कहाँ आ रही है. अच्छा, ये अंदर वाला जो ब्रैकेट पूरा कोड कट ही नहीं किया ठीक से. वी विल कट इट फ्रॉम हियर टू, अभी रह गया. कोई नहीं, आने दो, दिक्कत होगा रही है. ओके, यहाँ पे यूजर्स नाम का एरे नहीं है. सो यूजर्स को यहाँ रखे, कहाँ रखे, ठीक है अभी ऐसे रहने देते, बाद में देखेंगे.